whenever online transactions are being done, there are transactional risk. Transactional risk means there may be defaults, there may be some problems while taking the order, placing the order, और वो फिर आपको गलत ऑर्डर मिल जाएगा, गलत चीजें आपके पास आ जाएंगी. ऑल्सो डिलीवरी में डिफॉल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम confusion in the address and all. Some people make money out of it. Frauds, different frauds take place. उसके अलावा और कौन सा हो सकता है? पेमेंट. पेमेंट जब आप करते हैं कई बार जो है ज्यादा पेमेंट हो सकती है गलती से, एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकवर इट बैक. दूसरा है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क. डाटा स्टोरेज, डाटा जो भी स्टोर होता है स्पेस में, वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. आप आजकल बहुत सारी चीजें सुनते होंगे अबाउट फेसबुक, अबाउट ट्विटर, अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां से कि पर्सनल डाटा इज copied by someone, personal data is stolen, and sometimes the personal data of the clients is sold by these companies to different people, and they use it for their own benefit. There are various security risks. Because your your personal details are leaked out, so there may be a problem of your property, there may be problem of threat to intellectual property. जो आपका जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, some people are very good programmers and all, उनके वो डाटा सब चोरी हो सकता है, प्रोग्राम्स चोरी हो सकते हैं, डिजाइन्स चोरी हो सकते हैं. so those risks are there in that. अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? we should have verification from cookies होते हैं. आपने उसमें नेट में जब आप करते होंगे, देर आर कुकीज आर कॉलर आईडीज टाइप, जिससे पता चलता है कि जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल सही है, जो आपको कांटेक्ट कर रहा है ही इज वेरीफाइड पर्सन एंड ऑल. क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की डिटेल्स बिल्कुल भी आपको जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्या कहते हैं उसे, शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ, बिकॉज देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Antivirus programs should be used. और जब भी आप खरीदें, you should purchase from well established brands और शॉपिंग साइट्स. वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स और शॉपिंग साइट से ही हमें खरीदना चाहिए. ये तो नॉर्मल है बेटा, दिस यू ऑल नो वेरी वेल. कीप योर कैमराज ऑन. विशाखा, मीनाक्षी, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. मीनाक्षी, that is outsourcing. Outsourcing is a very important chapter. Any of you has heard about outsourcing? What is outsourcing? Any example can you give? Sir, for example, in a school, if we the teaching staff is doing the core activities, whereas for other activities or for routine activities we employ other workers. They are this is called outsourcing. Yeah, something is correct. Anybody else? Anybody else? Outsourcing. Outsourcing is simply you can say a trend
adjustment where your work, you get your work done by others. You get your work done by others who are specialists in that particular field, who are specialists in that particular field, those who know about that work which is assigned to them. ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका अपना टाइम बचे, ताकि आप अपने मेन काम से ध्यान ना हटा सके. You concentrate on your own core activities, main work. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया प्रियदर्शनी ने, इन द स्कूल इफ देयर इज अ फंक्शन, एक इवेंट कराना, कोई मदर्स डे कराना है और सम अदर इवेंट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और एक चैरिटी प्रोग्राम कराना है, एक सेमिनार कराना है, तो स्कूल नहीं चाहता कि उसके टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो, बिकॉज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. सो दे विल हायर अ टीम, एन इवेंट मैनेजमेंट टीम, और उनको बता देंगे कि ये हमारा काम है, आपको इसको जो है ऑर्गेनाइज करना है. एवरीथिंग यू कैन यूज द स्कूल रिसोर्सेज, बट नोबडी विल बी देयर फ्रॉम द स्कूल टू असिस्ट यू. ओनली द स्टूडेंट्स यू कैन टेक ऑफ 7th 8th 9th क्लास और 11th क्लास जिनके बोर्ड एग्जाम नहीं है. So our teachers will be doing their work, and the event will be managed, controlled and organized by the agency which is known as outsourcing agency. So outsourcing means getting your work done by others. Outsourcing does not restrict to a trade or an industry. It does not restrict to a particular place. It is everywhere now. BPO, business process outsourcing, आपने सुना होगा, किसी से पूछो कहाँ काम करते हैं, हम BPO में काम करते हैं, business process outsourcing. उनका भी यही काम होता है. They are assigned different works. Even आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, these days आपने देखा होगा, मैरिज के लिए क्या करते हैं, एक पर्सन को ही सारा काम दे देते हैं. Who organizes each and everything? That one company or one person जिसको आप एक काम देते हैं, वो आपके लिए आउटसोर्सिंग कर रहा है. You are getting your work outsourced by others, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ताकि आपके मेहमान डिस्टर्ब ना हो. आपके घर में हो सकता है इतनी जगह ना हो, so you are arranging it, everything you have given to a person who will plan the wedding ceremony, place, menu, everything. You have to only pay to him, and you are tension free. You are tension free. You are free to do whatever you like, because you have sufficient time, you have sufficient place at home also, and you need not to worry about anything, and that person will look after each and everyone. आप अपने मेन उसमें कंसंट्रेट कर सकते हैं, वरना आदमी जो है दूसरे कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो जो है मेन काम जो है उसको कर नहीं पाता है. राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. आपने सुना होगा रेलवे में कोई भर्ती होनी है तो उसका एग्जाम कौन लेगा? उसका एग्जाम पन्नागर यूनिवर्सिटी लेगी. पन्नागर यूनिवर्सिटी क्यों लेगी? पन्नागर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, जो लोग हैं, उनको सब पता है क्या पूछना जाना चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए, क्या क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, उसकी चेकिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम कौन करता है? पन्नागर यूनिवर्सिटी कर रही है. एंड रेलवे हैज नथिंग टू डू विद इट. जो आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और जो अपॉइंटमेंट होगा, उसमें रेलवे का कोई रोल नहीं होगा. एवरीथिंग विल बी डन बाय द आउटसोर्सिंग एजेंसी. तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं to concentrate on your core activities. Features of outsourcing: it involves contracting out. Contracting out means appointing a source from outside, not from the organization, from outside to perform business activities which were earlier done by ourselves. तो जो चीज हम कर रहे थे, अब हम उसके लिए किसी और को अपॉइंट कर लेते. घर में आप मेड भी रखते हैं
तो मेड रखते हैं तो मेड आपका काम करते हैं सारा, तो आपको वो टाइम फ्री होता ना, दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज इन योर अदर एक्टिविटीज, मोर इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, राइट? अदरवाइज यू वुड नॉट हैव दैट sufficient time to perform those activities. Number 2, generally non-core business activities are outsourced. Non-core business activities, आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी का मेन काम कभी भी किसी और को नहीं देंगे. You will only give those activities which are non-core, which are not your main activities. उसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो आपका रेगुलर काम नहीं है, जिसमें आपको ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, जिसमें आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो काम आप देंगे ना. घर बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अगर डिजाइनिंग आती भी है तो आप खुद थोड़ी करेंगे. आप सोचेंगे कि अगर भाई इसमें तो बहुत सारी कमियां रह जाएंगी, आप एक आर्किटेक्ट को ही तो हायर करेंगे. Architect will give you the right ideas and all. You can give your creative ideas, but the final design will be made by the architect. आप घर बनाने वालों को तो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं because you know that he can best do it. That is not your main work. आप अपना जो मेन काम है, जो बिजनेस है आपका, वो कभी किसी से नहीं कराएंगे. वो उसके साथ के जो दूसरे काम हैं वो आप जरूर किसी से करवा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी विल डू इट फॉर यू. Processes may be outsourced to a captive unit or a third party. There are two terms here, captive unit and third party. Captive unit or captive BPOs are the organizations which provide services of a given kind to only one firm. दोनों में डिफरेंस है, कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी. कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी में दो मेन डिफरेंस है. कैप्टिव यूनिट अपनी सर्विस जो भी वो देते हैं वो एक बार सिर्फ एक ही कस्टमर को देते हैं, फिर वैसा काम कहीं और नहीं करेंगे वो. They will do it especially for you only. That same work will not be done by them for other parties. हम अगर अपने स्कूल का एक फी का और सैलरी का एक सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो जो वो बना के देंगे, जो हमारे स्कूल को बना के देंगे, वो फिर किसी और को नहीं देंगे बना के. That particular software, that particular service will not be provided to anybody else. That particular software, sorry, service तो वो देंगे और schools और colleges के लिए भी बनाएंगे particular software, but उसमें change होगा. The same thing, the same service, the same product cannot be given to any other person or party. जब हम captive unit से कोई काम करवाते हैं, captive BPO, जो थर्ड पार्टी यूनिट है और बीपीओ है, वो एक जैसा काम सभी के लिए करते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो सेम काम करते हैं. ये है इसके फीचर्स. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स और नीड ऑफ आउटसोर्सिंग? नंबर 1, सबसे बड़ा फायदा इसका यह है, वी कैन फोकस आवर अटेंशन इन द कोर एक्टिविटी. We can focus ourselves on our main work. That is called focusing of attention. We will not be distracted, diverted. We will not be, having any sort of confusion regarding what to do, how to do, because we have already outsourced the work and we will do our main work. तो आपके मान लो एग्जाम है तो आपका मेन काम पढ़ाई करना है, इसलिए उस टाइम पे अगर कोई घर में कुछ काम है तो वो आपसे नहीं करवा रहे, बिकॉज
यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए उस टाइम पे फंक्शन वगैरह हमने क्या कर दिया, उसे आउटसोर्स कर दिया है, तो आप अपना मेन पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, बिकॉज यू हैव नथिंग एल्स टू डू। whatever work is to be done will be done by the outsourcing agency or company. So you can focus more on your work, on your core work, the main work. Number 2, quest for excellence. Quest का मतलब होता है thirst, thirst for excellence. You know, you desire the best. तो आप जो है बेस्ट एजेंसी से अपना काम करवाते हैं, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, आप अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, यू गेट द एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट आउटपुट। वरना आप भी कर सकते हैं किसी तरीके से वो काम, लेकिन फिर उस काम में उतना ज्यादा जो है मजा नहीं आएगा, दैट विल नॉट बी सो मच विथ परफेक्शन, परफेक्शन नहीं होगा उसमें उतना ज्यादा, बिकॉज दैट इज नॉट योर मेन वर्क, दैट इज नॉट योर मेन वर्क। अब घर में एक दीवार में पेंट करना थोड़ा सा आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, बट इट विल नॉट बी सिमिलर टू व्हाट अ पेंटर वुड डू, जिनका वो मेन काम होता है। कारपेंट्री का हो, प्लम्बर का कोई काम हो, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का कोई काम हो, if it is done by a particular person who is expert in it, the result will always be better. Number 3, cost reduction. इसमें कॉस्ट भी कम आती है। कोई अनाड़ी आदमी, नोविस आदमी, बिगिनर अगर कोई काम शुरू करेगा या करेगा अपने उससे, तो हमेशा खर्चा ज्यादा होगा उसमें। आप जो है एक्सपर्ट लोगों से वो काम कराएंगे विद अपडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो उसमें खर्चा जो है कम होता है, कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदनी पड़ेंगी जो बाद में आपके लिए वेस्ट हो जाएंगी, तो फिर वो आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। देयरफॉर आप जो है ऐसी कंपनी को, ऐसी एजेंसी को वो काम दे रहे हैं जो वो हमेशा करते रहते हैं। ग्रोथ थ्रू अलायंस, इससे आप जो है नए नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, इससे आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है। यू कम इन कांटेक्ट विद न्यू एजेंसीज, न्यू फर्म्स, एंड मे बी इन फ्यूचर यू हैव बेटर deals and agreements to work with. This gives you exposure, this gives you exposure, this gives you access to the market, new horizons are open for you, और आप और ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं इसमें। फिल अप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इससे काफी मदद मिलती है, बिकॉज लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग जनरेटेड, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इज डन इन दैट। नो, आईटी सेक्टर में आपने देखा है कितना ज्यादा इस समय बूम आया है, पिछले काफी टाइम से आईटी सेक्टर में न्यू वैकेंसीज आर कमिंग अप। बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा बहुत इस समय वो है, डाउनफॉल चल रहा है उसमें, बट जितना ज्यादा काम बढ़ता रहता है उतना ज्यादा जो है इकोनॉमी कंट्री की जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो, सम कंसर्न्स ऑल्सो, कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग। क्या है कंसर्न? नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी। योर बिजनेस सीक्रेट्स may be leaked out to the outsourcing company by maybe some of your employees, some of your partners, कुछ लोग आपके बिजनेस सीक्रेट्स लीक कर सकते हैं, बिकॉज द आउटसोर्सिंग एजेंसी पीपल कम एंड वर्क विद यू, है ना, दे सी योर वर्किंग स्टाइल एंड ऑल। तो हो सकता है कि आपके कुछ बिजनेस सीक्रेट्स क्या हो जाए, लीक हो जाए, या स्टाइल, पॉलिसीज, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, all this should be should not be leaked to outside agencies, otherwise they may get benefit out of it. Sweat shopping, sweat shopping, थिंकिंग स्किल वाला सारा काम वो खुद करते हैं, डूइंग वाला सारा काम वो बाहर वालों से कराते हैं। अगर आप किसी को
आउटसोर्स करेंगे कोई काम, तो वो जितना भी ब्रेनी वर्क है, जितना भी उसमें टेक्निकल वर्क है, जितना भी उसमें जो है थिंकिंग स्किल वाला काम है, वो खुद करते हैं। वो कभी भी किसी को शेयर नहीं करते, बताते नहीं कि कैसे किया हमने। दे विल ऑलवेज गिव द डूइंग वर्क, जो काम वाला, जो करने वाला होता है प्रैक्टिकली, वही काम दूसरों से वो करवाते हैं। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है, दे डू नॉट गिव देयर ideas, they do not share their doing skills, sorry thinking skills। तो वो आपके एम्प्लॉयज को अगर यूज करेंगे या आसपास की लेबर यूज करेंगे, जो भी चीजें करेंगे वो उनसे करने वाला काम कराएंगे, प्रैक्टिकल वाला जो काम होता है। बाकी सारा का सारा जो उसके पीछे का आइडिया है, जो बेसिक उसके पीछे वो है प्लान है, ब्लूप्रिंट है, दैट इज नॉट शेयर्ड बाय देम। तो स्वेट शॉपिंग मतलब वो सिर्फ पसीने वाला काम दूसरे से कराते हैं और बाकी सारा काम अपने पास ही रखते हैं। दे डू नॉट शेयर इट। होता ना कि आप अपना रेसिपी किसी को नहीं बता रहे खाने की, खाना बना बना के आप खिला रहे हैं, बट यू आर नॉट टेलिंग योर रेसिपी। सारे मसाले खुद मिक्स करके दे रहे, अब आप इसे बना लीजिए। व्हाई? बिकॉज वंस इट इज टोल्ड, तो फिर उनसे कोई काम कराएगा नहीं। सो दे डू नॉट शेयर देयर थिंकिंग स्किल, देयर आइडियाज, देयर इंटेलेक्ट, their experience, they do not share with anyone। ethical concerns, बाहर की कंपनियां जब आके काम करती हैं तो आप देखते हैं वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आती हैं, जिसको हम कहते हैं एलियन कल्चर। एलियन कल्चर मींस कल्चर फ्रॉम ऑफ अदर कंट्रीज और अदर पीपल। इंडिया में फास्ट फूड, जंक फूड, ये कौन जानता था पहले? कहां से आ गया ये? जब बाहर से इतनी कंपनियां आने लगी, बाहर से इतने अलग अलग लोग आने लगे, they have spread all these things। last, resentment in home countries। होस्ट कंट्री या होम कंट्री में इसका रिसेंटमेंट होता है, क्योंकि जब बाहर से कंपनी आके काम करने लगेंगी, इंडिया में अगर बाहर की कोई कंपनी आके काम करेगी, अभी आपका हाईवे बन रहा था, 4 लेन हो रहा था, तो इसमें जो कंपनी काम कर रही थी बाहर से आई थी। अब उससे क्या है, जो यहाँ के लोग हैं उन्हें तो काम नहीं मिल रहा था ना उसमें। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स वर नॉट गेटिंग वर्क। यही काम यहाँ की कोई कंपनी करती तो उनको जो है बेनिफिट होता, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता। लेकिन हमारे पास उतनी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी या उतना ऐसा काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वो कंपनीज करती हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हो। आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी मशीनें थी उनके पास, कितने बड़े बड़े काम को बड़ी आसानी से कर ले रहे थे, और इतनी जल्दी उन्होंने जो है फटाफट इतना लंबा जो है हाईवे बना के तैयार कर दिया। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज। कॉस्ट भी उसमें कम आती है। हम लोग अगर ये काम करते तो कितना लेबर लगाते हैं हम उसमें, कितना हम उसमें जो है अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत धीरे धीरे उसको कर पाते हैं। सो दैट इज टू से दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। द वर्क वाज आउटसोर्स टू अ पर्टिकुलर कंपनी और फर्म एंड दे डिड इट। अभी भी मेंटेनेंस का सारा काम उनके पास है, राइट? टोल से जो पैसे आते हैं उसी में से वो पैसे उनको दिए जाते हैं धीरे धीरे। द कंपनी इज कलेक्टिंग द टोल, जिसने ये रोड बनाई है, क्योंकि उनको पूरी पेमेंट नहीं करते। अब वो पेमेंट कहां से मिल रही है उनको? थोड़ी थोड़ी टोल से, जो इसमें टोल पे करते हैं लोग डेली फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है, थ्योरी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आउटसोर्सिंग, व्हाट इज आउटसोर्सिंग और इसके क्या कंसर्न्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ऐसे ही एक होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें हम नॉलेज, थिंकिंग स्किल वाला काम दूसरों से कराते हैं, जो हमसे नहीं हो सकता। अंडरस्टूड सी बात है। एक सॉफ्टवेयर बनाना है कंप्यूटर में कोई, तो हमसे तो होगा नहीं ना, तो हम इसमें दूसरे की नॉलेज को क्या करेंगे? हायर करेंगे। दूसरे की नॉलेज हम उसमें मांगेंगे। नॉलेज वो अपनी हमारे साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। किस फॉर्म में? जो भी हमारा काम होगा, कस्टमाइज्ड वे में हम अपनी रिक्वायरमेंट उन्हें बताएंगे। अलग अलग बैंक्स जो है अपने अपने ये बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? बैंकिंग एप्स। तो ये लोगों को, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को क्या करते हैं? हायर करते हैं। वो आके उनकी सारी रिक्वायरमेंट को जान के उनके अकॉर्डिंग, उनके बैंक के अकॉर्डिंग, उनके कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनको सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, ऐप बना के दे देते हैं,
which deals with all type of activities, all type of services, problems, everything. इट इज कॉल्ड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इसमें आप किसी से लीगल एडवाइस ले सकते हैं, राइट? जब आप किसी को बुलाते हैं और उससे लीगल एडवाइस लेते हैं, आप जो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एडवाइस लेते हैं, मेडिकल आपके पास कोई रिपोर्ट आती है, अब आप तो नहीं पढ़ पाएंगे वो रिपोर्ट. आपने अपने बॉडी का चेकअप करा लिया, रिपोर्ट आपके सामने आ गई. वो रिपोर्ट आपके लिए तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या लिखा है. आपको उसके लिए एडवाइस लेनी पड़ेगी. किससे? डॉक्टर से. डॉक्टर विल चार्ज द फीस. दिस इज नोन एज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. डाटा एनालिस्ट होते हैं आपके, एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, those who give their views, advice out of their knowledge. It is known as knowledge process outsourcing. एटीएम कार्ड्स के बारे में आपको पता ही है. और एक होती है एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, जहां से आप सामान भी निकाल सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं. एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन मशीन, जिससे आप पैसे भी निकाल सकते हैं, पैसे जमा भी कर सकते हैं. ऐसी कोई वेंडर मशीन्स भी आती हैं जिससे आप पैसे डाल के सामान भी ले सकते हैं, उसमें आपको सामान मिलेगा. दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. सो यू सॉ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट इन टूडेज बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे अलग है, ई बिजनेस के क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ये रिस्क हो गए, हमने इसमें पढ़ लिया कि आपका जो है ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है. इसमें आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस. और सबसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था स्कोप ऑफ ई बिजनेस, बी टू बी, बी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, सी टू सी, इंट्रा बी एंड बी टू ई. This was all about this chapter. So 5 chapters are over. Almost 50% syllabus is over because there are 10 chapters in the book. Okay, so we are at a very good pace, speed. Now we will revise. Next 1 week, जब तक आपके periodic test रहेंगे, we will only revise the previous chapters, chapter number 1, 2 and 3. Tomorrow we will revise chapter number 1. Tomorrow we will revise chapter number 1. You can ask your doubts, any concept. If you would like, I would explain again. These will be revision days till the periodic tests are going on. Take your exams very seriously. मल्टीपल चॉइस में भी आपको जो है काफी थिंकिंग करनी पड़ेगी. मे बी यू विल हैव टू सॉल्व, मे बी यू विल हैव टू फाइंड आउट, यू विल हैव टू एनालाइज, you will have to properly put your brains into it. Then only you will be able to do that. Thinking process should be there. Thinking process should be there. Anybody would like to ask anything? Okay, prepare well for your exam. Thank you for joining the class. God bless all of you.